کراچی کا مقدمہ اب فیصلہ مانگتا ہے۔ گورنر سندھ کا دو ٹوک پیغام، کراچی کے حق کی آواز ایک بار پھر بلند ہو گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مائی کراچی نمائش کی اختتامی تقریب اور پریس کانفرنس میں دل کی بات کہہ دی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ مائی کراچی نمائش کا تیسرا اور آخری روز گورنر کامران ٹیسوری کی دھواں دھار پریس کانفرنس دو ٹوک پیغام میں شہر کا مقدمہ پیش کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ یہ شہر جو ملک کی معیشت کا دل ہے، ٹیکس بھی سب سے زیادہ دیتا ہے، ووٹ بھی بھرپور دیتا ہے، لیکن جب خرچ کی باری آتی ہے تو سننے کو ملتا ہے وائی کراچی، سننے میں آتا ہے۔ صرف ایک بات کہوں گا اور آپ مانیں گے کہ یہ دل کی بات ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے آ کے اب تک سبھی نے کہا مائی کراچی، کیا کہا؟ مائی کراچی، لیکن جب بات آتی ہے پیسہ خرچ کرنے کی کراچی پہ تو پوچھتے ہیں وائی کراچی۔ کیا پوچھتے ہیں؟ وائی کراچی۔ گورنر سندھ نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ کراچی دارالحکومت نہیں، داراللفافہ ہے، یہاں ہر شخص لفافہ مانگ رہا ہے۔ کامران ٹیسوری نے بتایا کہ وفاق سے کراچی کے لیے 40 ارب روپے لیے ہیں۔ یہ میں اس لیے بھی آپ کے ساتھ آج ملانا چاہتا ہوں کہ MQM پاکستان نے وفاق سے اس سال 40 ارب روپے کراچی کے لیے حاصل کر لیے ہیں، 20 ارب ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ کراچی کی ترقی اب باتوں سے نہیں، فیصلوں سے مشروط ہے۔ یہ شہر صرف مائی کراچی کے نعرے کے لیے نہیں، عملی اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شہر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے میئر کراچی پرعزم بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ماڑی میں کراچی والوں کے لیے تفریح اور ذائقے کا نیا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ سی فوڈ اسٹریٹ کو رنگ برنگی چھتریوں اور دلکش روشنیوں سے سجایا گیا ہے جو رات کے وقت ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ تفصیلات جانیے شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ کیماڑی میں سی فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح، انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت روشنیوں کا بھی اہتمام۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کیماڑی کے عوام کی دلی خواہش پیپلز پارٹی نے پوری کر دی۔ یہاں کے مکینوں کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح برس روڈ پر فوڈ اسٹریٹ ہے، اسی طرح کیماڑی میں فوڈ اسٹریٹ بنائی جائے۔ ہم صرف اعلان نہیں کرتے، وعدے وفا کرتے ہیں۔ کراچی شہر میں بنس روڈ ایک فوڈ اسٹریٹ ہے، بورڈ بیسن ایک فوڈ اسٹریٹ ہے، یاسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں موری پور ٹاؤن میں کیماڑی کے اس مقام پر تاریخی اعتبار سے یہ ایک بہت پرانی ان کی فوڈ اسٹریٹ موجود تھی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خوبصورت فوڈ اسٹریٹ، ٹف پیور ٹائل، پیور بلاک صرف نہیں بلکہ روڈ کارپیٹنگ بھی اس علاقے میں کی جا رہی ہے اب۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ماڑی پور ٹاؤن میں اس سال کے آخر تک اسپورٹس کمپلیکس کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اگلے سال مارچ تک بلدیہ کے علاقے میں 25 ایکڑ پر محیط اسپورٹس کمپلیکس مکمل ہو جائے گا، جس میں فٹ بال، ہاکی، فٹسال، خواتین، بزرگوں اور بچوں کے لیے واکنگ ٹریک اور بچوں کے کھیلنے کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ اگلے سال مارچ تک بلدیہ کے علاقے میں 25 ایکڑ پر محیط اسپورٹس کمپلیکس، جس طرح KMC کا اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پہ آپ نے سنا ہے نا، جس میں فٹ بال بھی ہے، ہاکی بھی ہے، کرکٹ بھی ہے، فٹ سال بھی ہے بچوں کے لیے، واکنگ ٹریک بھی ہے بچیوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے کھیلنے کودنے کی فیسلٹیز ہیں، اس کو بھی ہم بنانے جا رہے ہیں 1.2 ارب روپے کی لاگت سے۔ 14 اگست کو ہب ڈیم کی نئی کینال کے افتتاح کی خوشخبری دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ نئی کینال شہر کے لیے اضافی پانی لے کر آئے گی، جس سے ضلع غربی اور کیماڑی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹریفک کے تمام قوانین میں ترامیم کر کے سخت قوانین بنا دیے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف، پروسیکیوشن اور پارلیمانی امور نے ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ترامیمی بل اب سندھ اسمبلی کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ٹریفک خلاف ورزی پر الیکٹرانک ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ 21 دن میں جرمانہ ادا نہ کرنے پر جرمانے کی رقم دگنی کر دی جائے گی۔ ڈرائیونگ کے دوران نشے میں ہونے پر 10 ڈی میرٹ پوائنٹس لگیں گے۔ اس حوالے سے دیکھیے آزاد نہوڑیوں کی یہ رپورٹ۔
सिंध में ट्रैफिक निजाम जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर होगा। ट्रैफिक निगरानी के लिए ANPR और स्पीड कैमरे शामिल होंगे। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, प्रोसिक्यूशन और पार्लिमानी अमूर ने ट्रैफिक कवानीन के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। खुदकार निजाम से खिलाफ वर्जियों की रिकॉर्डिंग और तस्दीक होगी। खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने मुमकिन होंगे। हैवी गाड़ी चलाने के लिए 1 साल LTV लाइसेंस लाजमी करार दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से तरबियत के बगैर लाइसेंस मुमकिन नहीं हो। लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी की सूरत में पाकिस्तान भर में नया लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। जाली शनाख्त या दूसरे सूबे में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। 180 दिन में जुर्माना अदा न करने पर अदालत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे सकती है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान नशे में होने पर 10 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। हादसे के बाद मौके से फरार होने पर 10 पॉइंट्स का इंदराज होगा। खतरनाक ड्राइविंग, वन व्हीलिंग या रेसिंग पर 8 डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। तेज रफ्तारी या खराब गाड़ी चलाने पर 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 4 डीमेरिट पॉइंट्स, मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद सवार होने पर 4 पॉइंट्स लगेंगे। गलत लेन में गाड़ी चलाने पर 4 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। 21 दिन में जुर्माना अदा न करने पर जुर्माने की रकम दुगनी कर दी जाएगी। 90 दिन तक जुर्माना अदा न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। सिंध में बढ़ती ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों और हादसात के पेश नजर कानून में तरमीम तजवीज की गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी को जब्त या लॉक किया जा सकेगा। अपील पर फैसला SP, DSP और CPLC नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इंक्वायरी कमेटी 10 दिन में अपील पर फैसला करने की पाबंद होगी। अगर अपील मंजूर हो जाए तो टिकट मनसूख तसव्वुर होगा और कोई पॉइंट्स नहीं लगेंगे। अगर अपील मुस्तरद हो जाए तो टिकट कमेटी के फैसले की तारीख से नाफिज समझी जाए। आजाद नोहरियो, सिटी 21। अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे पर सरमायाकार मुताहरिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1827 पॉइंट्स इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह 1,41,000 से भी तजावुज कर गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदी की जानिब गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1827 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1.3% इजाफे से 1,41,034 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 180 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 218 अरब रुपए बढ़कर 16,906 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि अमेरिका से तिजारती मुआहदे की खबर ने मार्केट पर मुस्बत असरात मरतब किए। US से जो टैरिफ के हवाले से खबर आई है, पाकिस्तान और US का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से मार्केट ने इसको इंटरेस्ट रेट की जो खबर है इसको एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम हो सकते थे। लेकिन जो इसकी जो मंदी है वो आपने देखा कि इसमें जो कि अच्छी खबर आई जो कि US के हवाले से थी। माहिरीन का कहना है कि जुलाई 25 में महंगाई की शरह 4.1% रही, जो जून में 3.2% थी। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखने का ऐलान किया है। अशरफ खान, सिटी 21। कौंसल जनरल थाईलैंड और इंडोनेशिया कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में दूसरे ममालिक के लोगों के लिए प्यार और खुलूस है, जिसकी हम कदर करते हैं। कराची में सजी माई कराची नुमाइश में दोस्त ममालिक के स्टॉल्स भी लगाए गए। गैर मुल्की स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। 20वीं सालाना माई कराची एक्सपो का कामयाब इनकाद। रोशनियों के शहर में रंगारंग मेला, 350 से ज्यादा स्टॉल्स, शिरका की तवज्जो का मरकज। थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत दोस्त ममालिक के स्टॉल्स की धूम। 3 रोजा नुमाइश में थाईलैंड कौंसल खाना कराची की जानिब से स्टॉल लगाया गया, जहां आम और चावल से बनी अशिया के जायके ने शिरका को खूब महसूस किया। कौंसल जनरल थाईलैंड और उनकी अहलिया का कहना था कि थाई अशिया दुनिया में अपनी नुमाया पहचान रखती है। कराची में स्टॉल लगाने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। We started our participation since on Friday, and then we serve the customer with our mango, sweet mango from Pakistan, combined with our sticky rice from Thailand, and we put a little of coconut milk on the top, so it's make special, taste of mango and sticky rice. Pakistani people, they like to try the mango sticky rice, and they would like to what we have in the Thai the Thai product. Yeah, it's very very good.
इंडोनेशियन कॉन्सुलेट कराची की जानिब से भी अशिया का स्टॉल लगाया गया। कौंसल जनरल इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। And another that we have the food stall in here. Alhamdulillah, we promote also Indonesian food in here, and now they are together and try the Indonesian food in that stall. And our participation at My Karachi every year is one of our supports to increase close collaboration between Indonesia and Pakistan, especially in trade. सिफारतकारों ने अगले साल भी नुमाइश का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद फराज खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी अफ्रीका हामिद असर खान का दौरा कराची। इथोपिया के एहसासी कौंसल जनरल इब्राहिम तवाब की जानिब से हामिद असर खान के एहसास में अशाई का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान अफ्रीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने का अज़्म का इआदा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सैयद जुबैर राशिद से। आगाह कीजिएगा जुबैर। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं तवाब हाउस में और इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम तवाब की जानिब से एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी हैं अफ्रीका के हामिद असगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शहर कायद के दौरे पर हैं और इनके एजाज में आज इशाइया जो है वो मुनक्किद किया गया है। मेक अफ्रीका ग्रेट अगेन के विजन के मुताबिक आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, इसमें दिस वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट गेट टुगेदर टुडे, क्योंकि अफ्रीका जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ मार्केट है एंड इट प्रेजेंट्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स एज वेल एज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स। 54 मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर, उनमें से 19 में हमारी एम्बेसियां हैं, बाकियों में ऑनररी कॉन्सल्स हैं। इसी तरह अफ्रीका के 54 मुल्कों में से 15 एम्बेसियां इस्लामाबाद में हैं और बाकी ये जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं जो ऑनररी कॉन्सल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन दी टू इकोनॉमीज। इथियोपिया के हवाले से, क्योंकि आज इनके घर ये जो है मीटिंग भी हुई और उसके बाद जैसे आपने कहा कि खाना भी हुआ, तो इथियोपिया की इंपॉर्टेंस एक तो ये है कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट मुल्क है। दूसरा ऐसा है कि पाकिस्तान का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और टीडैप है अलॉन्ग विद द फॉरेन ऑफिस एंड द बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ पाकिस्तान सिंगल कंट्री एग्जीबिशन होने जा रही है इन अक्टूबर, तो उसके लिए कई चंद 100 एग्जीबिटर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो पाकिस्तान से वहाँ जाएंगे और हमारी मईशत को कनेक्ट करेंगे विद द अफ्रीकन इकॉनमी। एम्बेसडर साहब ये भी फरमाएगा, एक जानिब हमारे शहरियों का रुझान होता है यूरोपियन ममालिक में तालीम हासिल करने के हवाले से, अगर अफ्रीका में तिजारत को एक तरफ रखकर तालीम के हुसूल के लिए अगर काम किया जाए तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान तालीमी शोबे में कितने मौके मौजूद हैं? जी, तालीमी, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। यू विल बी हैप्पी टू नो कि युगांडा जो है वहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उन्होंने जाके वहाँ एक कैंपस खोला है और युगांडा में ही एक हेल्थ यूनिवर्सिटी भी जो है वो बनी है। एजुकेशन कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी और का साइज और पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो हमारे पास, हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास और पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। इस सिलसिले में अभी जिम्बाब्वे से उनकी प्रेसिडेंसी से सेक्रेटरी साहब एक डेलीगेशन लेके आए थे और उनके साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है ऑन एजुकेशन कोऑपरेशन। एजुकेशन कोऑपरेशन पे भी जो है गुफ्तशनीद की गई है। इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम तवाब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप एक ऐसे कौंसल जनरल हैं जो कि कराची में सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑनरीज में कहलाए जाते हैं। एम्बेसडर साहब आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत अरसे बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इस्लामाबाद से कोई कराची आया है और उन्होंने ऑनरी कॉन्सल्स की बात सुनी है, समझी है, उनको ऑन बोर्ड किया है और मैं बड़ी तारीफ करता हूं इनकी, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने लुक अफ्रीका पॉलिसी डिज़ाइन की है और ये इतने पैशनेट हैं अफ्रीका के बारे में कि हमें ऐसा ही कोई चाहिए जो कि अफ्रीका को दिल और जान से चाहे पाकिस्तान में रहते हुए, तो ही वो उसको सही इंपॉर्टेंस दे सकता है। और इंशाल्लाह ये 2 महीने बाद जो है वो लाहौर से भी डायरेक्ट अदीस अबाबा फ्लाई करना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त एक की स्ट्रैटेजी आप समझें कि पाकिस्तान को अफ्रीका से कनेक्ट करने की है। साथ साथ जैसे कि एम्बेसडर साहब ने अभी बताया कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंगल कंट्री एग्जीबिशन करा रही है अदीस अबाबा में।
Zubair Saab, this will be the biggest Made in Pakistan exhibition ever held in the history. So more than 400 log, 450 people will be participating in this exhibition. इसमें हमारे पास different non-traditional export sector से लोग होंगे, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जिस तरह से एक टैरिफ वॉर चल रही है, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज की मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, अफ्रीका एक वर्जिन कॉन्टिनेंट है, और जैसे कि हमने बात की कि इट्स अ कॉन्टिनेंट ऑफ 54 कंट्रीज, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि वर्जिन मार्केट है, और जहां पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इथियोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम तवाब और एम्बेसडर हामिद असगर खान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अफ्रीका को जिस तरीके से अफ्रीका पाकिस्तान में एक्टिव हुआ हुआ है, अफ्रीकी ममालिक के हवाले से नुमाइंदगी जो है वो की जा रही है, तो यकीनन तौर पर दो तरफा मजबूत ताल्लुकात जो हैं वो इसी तरीके से फरोग पा सकेंगे। जी, जश्न आज़ादी नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप में सिंध की टीमों का क्लीन स्वीप, तीनों कैटेगरीज के फाइनल सिंध ने जीत लिए। फातेह खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। मुमताज शिकरी की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी जूनियर पैडल चैंपियनशिप सिंध के नाम सिंध की टीमों ने तीनों कैटेगरीज में फतह हासिल की। अंडर 18 का फाइनल सिंध लेजेंड्स, अंडर 16 का फाइनल सिंध MNX और अंडर 14 का फाइनल सिंध 1 अल्लाह वाले ने जीता। पैडल नया खेला है और काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है, हर कोई बंदा आप पूछे खेल रहा होता है। आज हम माशाल्लाह से क्वार्टर से लेके सेमी तक लेके फाइनल में पूरी हमने कोशिश की और माशाल्लाह से हम यहाँ जीत गए। आज टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था और पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है ताकि मज़ा भी आए। CEO पाकिस्तान पैडल फेडरेशन मुदस्सिर आरआई ने कहा, प्लेयर्स के लिए मुसलसल इवेंट का इनेकाद करेंगे। ये चैंपियनशिप जो है 31 जुलाई से 3 अगस्त तक मैदान कराची KMC में मुनक्किद हुई। इसमें 3 कैटेगरीज थी, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18। बेसिकली हमारा ग्रास रूट लेवल से टैलेंट निकालना, उसको पॉलिश करना, और पाकिस्तान ने FIP जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है स्पेन जूनियर वर्ल्ड कप में जा रही है, और जो इसमें जीतने वाले खिलाड़ी हैं जो सिलेक्शन कमेटी टीम सिलेक्ट करेगी। फातिह टीम को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को स्पेन में शेड्यूल जूनियर कप के लिए भी मुंतखब किया जाएगा। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ मुमताज शिकरी, सिटी 21।